Students, how are you all? Today we are going to study chapter 1 from grade 8 supplementary textbook It So Happened. Chapter 1 is How the Camel Got His Hump. In the beginning, when the world was new and the animals were just beginning to work for man, there was a camel and he lived in the middle of a howling desert because he did not want to work. He ate sticks and thorns and prickles, and when anybody spoke to him, he said, "Humph, just humph and no more." अब दुनिया की शुरुआत ही हुई थी और जब एनिमल्स इंसानों के लिए काम करना शुरू कर रहे थे, वहाँ पे एक कैमल था जो एक हाउलिंग डेजर्ट के मिडल में रहता था क्योंकि उसे कुछ भी काम करना अच्छा नहीं लगता था। वो सिर्फ स्टिक्स, थ्रॉन्स एंड पिकल्स खाता था और जब भी कोई उसे कुछ पूछे ही वुड जस्ट से जस्ट हम एंड नो मोर. Presently the horse came to him on Monday morning with a saddle on his back and said, "Camel, oh camel, come out and trot like the rest of us." At that time one horse came to him on Monday morning. He was having a saddle on his back. जो horse के ऊपर बैठने का होता है उसको सैडल बोलते हैं. एंड उसने कैमल से कहा कि कम आउट एंड यू ऑल्सो वर्क लाइक अस. तो व्हाट डिड द कैमल रिप्लाइड? हम्फ, said the camel, and the horse went away and told the man. कैमल ने सिर्फ इतना ही कहा कि हम्फ एंड ये सुनते ही हॉर्स वहाँ से चला गया और वो जब इंसानों के पास गया तो उसने यही चीज़ उन लोगों को बता दी. Presently the dog came to him with a stick in his mouth and said, "Camel, oh camel, come and fetch and carry like rest of us." Hump, said the camel, and went away and told the man. Now again when the dog asked the camel to come and work, he again replied, "Hump." और फिर वहाँ से डॉग चला गया और उसने मैन से यही बात बताई. Presently ox came to him with a yoke on his neck and said, "Camel, oh camel, come and pluck like rest of us." Hump, said the camel, and the ox went away and told the man. अब डॉग के बाद ऑक्स आया और उसने भी कैमल से यही बात की कि तुम चलो हमारे साथ काम करो. तभी भी कैमल ओनली रिप्लाइड हम्प. और फिर ऑक्स वापस गया और उसने मैन को ये बात बताई. एट द एंड ऑफ द डे द मैन called the horse and the dog and the ox together and said, 303, I am very sorry for you, but that thing in the desert can't work. या तो उसे अभी आके यहाँ पे काम करना पड़ेगा या तो फिर मैं उसे अकेला छोड़ दूँगा और उसका भी सारा काम आपको डबल टाइम वर्क करके करना पड़ेगा. That made the three very angry and they held a panchayat on the edge of the desert, and the camel came chewing cud and laughed at them. Then he said hump and went away again. इन तीनों को ऐसे मीटिंग करते हुए देख के कैमल वहाँ से पास हुआ. वो कुछ खा रहा था और हंसते हंसते हम्प बोल के वहाँ से चला गया. Presently there came along the jinn who was in charge of all deserts, rolling in a cloud of dust. अब there came a jinn and jinn was in charge of all the desert. वो वहाँ पे आया. Jinn of all deserts, said the horse, "Is it right for anyone to be idle?" "Certainly not," said the jinn. "Well," said the horse, "there's a thing in the middle of your desert with a long neck and long legs, and he hasn't done a stroke of work since Monday morning. He won't trot." तब जीन आया तो हॉर्स ने उससे पूछा कि जीन ऑफ ऑल डेजर्ट्स, क्या ये सही बात है कि कोई ऐसे ही खाली बैठा रहे? तो जीन सेड नो. वेल, तब हॉर्स ने कहा कि देर इज़ वन पर्सन इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट हु इज़ हैविंग अ लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स,
and he has not done a single work since Monday morning. Phew, said the gin, whistling. That's my camel. What does he say about it? He says hump and he won't bluff, said the ox. Very good, said the gin. I'll hump him if you will kindly wait a minute. तब जिन पहचान गया और उसने बोला कि हाँ ये तो मेरा कैमल है, वो क्या बोल रहा है। तो ऑक्स ने कहा कि वो सिर्फ हम बोलेगा और प्लफिंग भी नहीं करेगा। तभी जिन ने कहा कि गुड, अब आप लोग थोड़ी देर के लिए वेट करो, आई विल जस्ट कम एंड गिव द कैमल अ hump. The gin rolled himself up in his dust cloak and took a walk across the desert and found the camel looking at his own reflection in a pool of water. तब जिन अपने हवा में डस्ट में उड़ के डेजर्ट में गया और जहाँ कैमल था वहाँ गया एंड उसने देखा कि कैमल जो है वो अपना खुद का ही रिफ्लेक्शन रिवर में देख रहा है। माई फ्रेंड, सेड द जीन, व्हाट्स दिस आई हियर ऑफ योर डूइंग नो वर्क? द जीन सेट डाउन विथ हिज chin in his hand while the camel looked at his own reflection in the pool of water. You have given the 3 extra work ever since Monday morning on all on account of your idleness, said the jinn, and he went on thinking with his chin in his hand. तभी जीन ने कैमल से पूछा कि आप क्या कर रहे हो, मैं ये क्या सुन रहा हूँ आपके बारे में। जीन ने बोला कि आपको 3 एक्स्ट्रा वर्क दिए गए हैं मंडे मॉर्निंग से क्योंकि आपने कुछ भी नहीं किया है। लेकिन फिर भी कैमल तो अपना ही रिफ्लेक्शन देखने में बिजी था। Hump, said the camel. I shouldn't say that again if I were you, said the jinn. You might say it once too often. I want you to work. And the camel said hump again. But no sooner had he said it than he saw his back that he was so proud of, puffing and puffing up into a big hump. तब वापस से कैमल ने हम्प ही कहा तो जीन सेड कि नाउ यू विल नॉट से इट अगेन, एंड अगर आपको बोलना है तो यू ऑल्सो हैव टू वर्क। अगेन द कैमल सेड हम्प, और जैसे ही उसने ये बोला उसने देखा कि जिस बैक पे उसे इतना प्राउड था वहाँ पे वो ऊपर ऊपर रेज होके पफ होके एक बहुत ही बड़ा हम्प बन गई है। डू यू सी दैट, सेड द जीन, दैट्स योर वेरी ओन हम्प दैट यू हैव ब्रॉट अपॉन योर वेरी ओन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग. टुडे इज थर्सडे एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे. व्हेन द वर्क बिगिन, नाउ यू आर गोइंग टू वर्क. अब उसने कहा कि तुमने जो अपना काम का बोझा अपने ऊपर रखा हुआ है ये हम्प उसी का एक साइन है, उसी का एक रिजल्ट है। तुमने मंडे से कोई भी काम नहीं किया एंड टुडे इज़ थर्सडे. नाउ स्टार्ट डूइंग योर वर्क. हाउ कैन आई, सेड द कैमल, विद दिस हम्प ऑन माई बैक? That has a purpose, said the jinn. All because you missed those 3 days. You will be able to work for 3 days without eating because you can live on your hump and you don't ever say I never did anything for you. Come out of the desert and go to the tree and behave. तभी कैमल ने पूछा कि ये हम्प के साथ हाउ विल आई वर्क? तभी जीन सेड कि इस हम्प को मैंने कुछ रीज़न से दिया है, क्योंकि तुमने 3 डेज़ का वर्क मिस किया है तो अब तुम 3 डेज़ के लिए विदाउट ईटिंग भी काम कर सकते हो बिकॉज ऑफ योर हम्प. और अब कभी कुछ मत कहना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया. अब जाओ डेजर्ट के बाहर एंड स्टार्ट वर्किंग विद द अदर 3 एनिमल्स. एंड द कैमल वेंट अवे टू जॉइन द 3 एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस द कैमल ऑलवेज वेयर्स अ हम्प. But he has never yet caught up with the 3 days that he missed at the beginning of the world, and he has never yet learned how to behave. और अभी भी उस दिन से कैमल ने उन तीनों को जॉइन तो कर लिया लेकिन उसके ऊपर ये हम्प हमेशा ही रहता है, क्योंकि उसने जो 3 दिन का वर्क फिनिश किया है वो कभी भी उसने अब तक फिनिश नहीं हो पाया है और उसने अभी भी बिहेव करना भी नहीं सीखा है प्रॉपरली. दिस चैप्टर इज़ रिटन बाय रुडयार्ड किपलिंग. थैंक यू एंड टेक केयर.